एक ही कंडीशन होती है, उसमें एकता होनी चाहिए, और आज हम एक नहीं हैं। सो ह्यूमन राइट्स बेसिकली आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, sacred and invaluable. And see, many people in this during the freedom fighting movements, even the round table conference we have seen, before many speakers have told about this round table conference. But Dr. Ambedkar is the only authority who talk on the human rights. Rest people who attended from the Congress side, that they talk on the Hindu rights. Muslim League talk on the Muslim rights. Sikh talk on the Sikh rights. It is the only the Dr. Ambedkar who talk on the human rights, civil rights, adult franchises, voting rights. This shows how he was humanistic, and he is a global leader, not an Indian leader, and he drive all the theories from our ancestors, that is Buddha and the Indus Valley civilization. People says कि no, these are the values we have derived from the French revolutions. No, these are our own values basically. So Magna Carta basically it is an agreement with the barons and the king. It's not a human rights for all the peoples. सभी के लिए नहीं था। जो मैग्ना कार्टा जो लोग रिविलियस थे और किंग था, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ था. So certain privileges has given in the by the king to the barons. And later on you say there is a human right declaration. Okay, so human right declaration just before the framing of the Constitution of India, and maybe the next slide will see there are similarities in this human right and the fundamental right or the constitutional rights. Next. So see here the human right and the constitutional rights almost same. If you see any article, Article 19 of the UN and the Article 19 of the Constitution of India, or you can see other also. So do we support the tolerate and human practice? Normally हम लोग क्या देखते हैं कि कल्चर रिलेटिविज्म जो होता है उसमें कहते हैं कि नहीं हमारी संस्कृति में ये चीज़ सही है, कोई कहता है नहीं कि हमारी संस्कृति में ये अलाउड है. अब कई सारी प्रैक्टिस देख लीजिए. ये बताइए सती, मास किलिंग, अनटचेबिलिटी, ये कौन सी संस्कृति है जिसमें अलाउड है? ये कैसी संस्कृति जिसमें इन ह्यूमन वैल्यूज को हम परमिशन देते हैं? तो यू कैन नॉट बेसिकली चैलेंज द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. आप संस्कृति के आधार पर या संस्कृति के डाइवर्सिटी के आधार पर या हमारे कुछ पुराने जो मूल्य हैं जिसको हम सो कॉल्ड वैल्यूज बोलते हैं, उसके आधार पे आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते. सो देन द डॉक्टर फाइट्स कि नो these things have to be broken down. So this is the questions when the followers of the Buddha asked to the Lord Buddha कि हमें करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है. Then in the Kalam Sutta, Buddha says कि जिसको आप टेस्ट कर सकें, जिसको आप वेरीफाई कर सकें रेशनली, लॉजिकली, आप उसको मानिए. अगर आपको लगता है कि सती प्रथा टेस्टेबल है और सही है, रेशनल है, then you can do. But nobody say, no culture permit this kind of inhuman practices. Next. So universality of human right and justify the cultural religious laws. It means CR challenging, CR means cultural relativism, challenging the human dignity. And human dignity is the outcome of the practice of human rights. तो मानवीय गरिमा क्या है बेसिकली, कोई बताएगा? डिग्निटी की मीनिंग क्या है? ह्यूमन डिग्निटी कोई भी अगर इस लगता है. प्रेम करना, दया. आप बताइए. यस, मानव आपका भी सही था.
बेसिकली मानव गरिमा वो गरिमा होती है इंसान की वैल्यू, बैठ जाइए, इंसान की वैल्यू जो उसके होने से है। आपकी वैल्यू अगर किसी पद से है, आपकी वैल्यू किसी एफिलिएशन से है, आपकी अगर वैल्यू किसी पोजीशन से है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आप अफसर हैं, आप फलानी जाति से बिलोंग करते हैं इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो नहीं। मानवीय गरिमा में, ह्यूमन डिग्निटी में इन सब को हटा के, इस सारे लेबल्स को रिमूव करके जो आप इंसान बनते, जो मानव हैं, वही गरिमा है। मेरे लिए ठाकुर साहब भी एक इंसान है, सिर्फ इंसान, और मैं भी उनके लिए इंसान हूँ। वो मैं दिलीप हूँ, सिर्फ दिलीप, इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं। ये होती है मानवीय गरिमा। और मानवीय गरिमा की सबसे बड़ी लड़ाई, विश्व में सबसे लंबी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस पर गया है। पूरा जीवन उन्होंने मानव अधिकार और सामाजिक न्याय पर ही उन्होंने पूरा अपना जीवन कुर्बान किया है। और देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट बैटल भी इंडिया से डॉक्टर अम्बेडकर लड़ा है, और सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस भी इंडिया में होते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा मानव अधिकार का हनन भी भारत देश में होता है। तो देयर इज अ टू काइंड ऑफ colonization. One is the internal colonization, that the Dr. Ambedkar is fighting for the human rights. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि कलाराम टेम्पल एंट्री का एग्जाम्पल देख लीजिए, या वो सिविल टैंक था जिसमें उनको पानी पीने का जो था महाड़ मार्च था। दूसरी तरफ साल्ट टैक्स था जो कि गांधी जी लड़ रहे थे। एक एक्सटर्नल था अंग्रेजों के साथ में, और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनल लड़ रहे थे। और ये दोनों सत्याग्रह उन्होंने पानी पीने या मंदिर जाने के लिए नहीं थे। ऐसा नहीं कि किसी मंदिर में जाकर के उनको पूजा करनी थी या भजन करने थे, ऐसा नहीं था। वो उस व्यवस्था को चैलेंज करना चाह रहे थे, उस व्यवस्था पर अटैक करना चाह रहे थे। उसी समय पर क्या हुआ कि सावरकर जी को अंडमान की जेल से इनको शिफ्ट किया रत्नागिरी जेल में। तो जैसे उनको पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर कोशिश कर रहे हैं टेम्पल एंट्री के लिए, तो ही रोट ए लेटर। उन्होंने चिट्ठी लिखी और बोला कि मेरे रत्नागिरी में एक पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर है, और अगर आपको मंदिर जाना है तो मेरे साथ चलिए, उस छोटे से मंदिर में आपको साथ ले चलता हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने रिप्लाई दिया, राइटिंग में ही दिया उन्होंने रिप्लाई। उन्होंने कहा कि मेरा जो टेम्पल एंट्री है, बेसिकली मुझे वो चतुर्वर्ण व्यवस्था को अटैक करना था। अगर आप इस व्यवस्था में मेरे इसको अटैक करने में, इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने में आप मेरे साथ चल सकते हैं, अगर आपका अंदर इतनी डेयर है, यू ज्वाइन मी प्लीज। देन सावरकर ने फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जितने भी बेसिकली ये जो चीज़ें थी, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें थी। एक देखिए कि अगर मेरे पैदा होने से पहले या इंसान के पैदा होने से पहले अगर उसकी ऑक्यूपेशन फिक्स कर दी जाए कि अगर आप इस घर में पैदा होंगे, अगर आप पॉटर्स के घर में पैदा हुए तो आपका काम पॉटरी बनाना ही होगा। और फिर वो पॉटर्स, वो कुम्हार बेसिकली कुछ भी कर ले, संस्कृत में कितने भी अपार, वेदों में कितनी भी प्रांगता हो, PhD हो, लेकिन वो प्रीस्ट नहीं बन सकता। इतना इनह्यूमन और आर्टिफिशियल डिवीजन इस धरती में कहीं नहीं मिलेगा जितना इस देश में मिलता है। तो इसको ख़त्म करना है बेसिकली। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल डिविजन्स हैं, इतने कंपार्टमेंट में हमको बांट दिया है, और ऐसा बांटा है कि आपकी शिफ्टिंग नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। इवन बनिया कैन नॉट बिकम ए प्रीस्ट, मान के चलिए। देन इसके बाद ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप देखेंगे कि उन्होंने लेबर राइट्स पे बहुत काम किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और चिट्ठियाँ लिख करके उन्होंने जा कर के आवेदन दिए सरकार को, साथ गए थे 400 फीट नीचे खाई में माइनिंग में जाकर के उन्होंने वर्कर्स की कंडीशन देखी, तब जाकर उसको समझा, फिर जाकर उन्होंने इस फाइट को लड़ा। ही फाइट द बैटल विथ हिमसेल्फ एंड विद द टीम आल्सो,
तो उन्होंने क्या क्या किया, मिनिमम वेजेस आपके पास आए, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव आई, वर्किंग आवर्स को कम किए, 8 घंटे लेके आए। कई सालों से ग्लोबली ये चल रहा था वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए, 14 घंटे से 8 घंटे लाने की प्रक्रिया डॉक्टर मेगन ने दी आपको, 8 घंटे काम करने की। फिर क्या दिया, हिंदू कोड बिल दिया। हिंदू कोड बिल से पहले महिला किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी होती थी। जब तक शादी नहीं है वो बाप की प्रॉपर्टी है, शादी के बाद पति की प्रॉपर्टी है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने